Hello everyone. Well, let's talk about be today. How to use be in the language. Yes, fairly right that be has a lot of use. In this part one, yes, this is not the complete use of be. This is one part of be we are going to discuss today. So what does be mean and where we use be? Well, be हम हमेशा यूज करते हैं जब भी हम कोई नाउन और एडजेक्टिव को लगाते हैं. So whenever you have to use a noun or an adjective, before that we have to use be. No noun or adjective can be used without be. Yes, उससे पहले be लगाना compulsory है. I hope we all are clear about the meaning of noun and adjective. Let me still give you an idea about it. So noun is a name of a place, person or thing. Things we can see, we can touch. Things which have existence. They are called noun, like shirt, marker, mobile, car. We can see, we can feel air. So these are things which are called noun. And adjectives are the word which define the quality of a noun. Like a student, the student is a noun. A sincere student, a punctual student, an obedient student. These are called adjectives which are defining the quality of a noun. A city, कैसा city? A beautiful city, well-maintained city, well-planned city. These are called adjectives of that noun. So now when we talk about this noun or we talk about adjectives, before them we have to use be. Some of you might be thinking right now that when I say I am sincere or he is punctual, you are lazy, I was naughty in my childhood, or they were mischievous. So in these all situations, I'm not using be and I'm using noun and adjectives. It's not so then. Is, am, are and was were be की ही forms हैं. be को जब present tense में use करते हैं तो हम is, am, are की form में लिखते हैं. और जब past tense में जाएगा be की second form जो है वो was were होती है. be, was, been ये उसकी forms हैं. तो be को जब past tense में हम लिखते हैं तो was were की tense में लिखते हैं. और अगर हम देखें तो इन जो noun और adjectives को हमने use किया तो उसके पहले हमने चाहे किसी भी form में लगाया तो be का use किया, is, am, are को use किया या was were को use किया. अब लेकिन अगर इन 5 सिचुएशंस के अलावा मुझे कहीं और किसी नाउन और एडजेक्टिव को लगाना हो जो मैं is, am, are और was were का यूज नहीं कर रहा हूं तो मुझे be को याद रखना होगा. फॉर एग्जाम्पल, I want to, you should, I can, I will, I have to. नॉर्मली इन सब जगहों पर हम एक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. या तो हम कहते हैं कि I want to buy a car, you should study, I can do it, I will come there, I have to study a lot. So what we are mentioning, a verb जहाँ हमें कुछ करना पड़ता है, हम किसी काम की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर इन्हीं सभी situations पर मैं कुछ करने के बजाय कुछ होने की बात करूँ, और होना क्या होता है, या तो noun है या adjective है. मैं अगर कहता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर एक नाउन हो गया. और इफ आई से आई एम सिंसियर तो मैं होने की बात कर रहा हूँ, सिंसियर होने की बात कर रहा हूँ, एडजेक्टिव लगा रहा हूँ. तो अगर मैं इन सब जगहों पर जहाँ पर एक नॉर्मली हम वर्ब लगाते हैं, अगर हम एक एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं, नाउन लगाना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पर वर्ब बी के फॉर्म में यूज करनी होगी. सो इफ आई वांट टू से आई वांट टू, और आई वांट टू के बाद मुझे लगाना है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो आई वांट टू बी अ डॉक्टर. उसका मन है टीचर बनने का, तो ही wants to be a teacher. और अक्सर हम लोगों से पूछते भी हैं, what do you want to be? अगर मैंने आपसे कहा you should, या तो कुछ करने की सलाह दूंगा, you should come on time, you should go for morning walk, you should work out. लेकिन वहीं पर कुछ होने की सलाह दूंगा कि कोई ऐसी क्वालिटी या कोई एक ऐसा प्रोफेशन जो मैं चाहता हूँ, कोई नाउन आप होने चाहिए, एक एडवाइस कर रहा हूँ, तो you should be. कि मुझे लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो मैं आपको रिस्पॉन्सिबल होने की सलाह दे रहा हूँ. कुछ करने की बात नहीं हो रही, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल. अगर कोई स्टूडेंट सिंसियर नहीं है तो उसको सिंसियर होने की सलाह दोगे तो क्या दोगे, यू शुड बी सिंसियर. टाइम पर आना, कम ऑन टाइम. अब कम यहाँ पर एक वर्ब है
और वर्ब के पहले बी अगर लगा दूंगा तो दो वर्ब हो जाएंगी, तो यहां मुझे बी लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई शुड से यू शुड कम ऑन टाइम। टाइम पर आने वाले व्यक्ति को बोलते हैं पंक्चुअल। तो अगर मैं आपको पंक्चुअल होने की सलाह दूंगा तो कहूंगा यू शुड बी पंक्चुअल। सो करना और होना इसका ध्यान रखें। आई विल, यू विल। सो विल के बाद भी सेम सिचुएशन है, या तो एक नॉर्मल करने की बात कर रहे हो, आई विल कम देयर, आई विल गो टुमारो, आई विल गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, लेकिन कुछ होने की बात करें। जैसे अगर मैंने कहा कि इस बार अगर विराट कोहली ने कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा विल बी द नेक्स्ट कैप्टन। और विल के बाद बी क्यों लगाया? क्योंकि नेक्स्ट कैप्टन एक वर्ब नहीं है, तो बी एज ए वर्ब वहां काम करेगा। ही विल बी द नेक्स्ट कैप्टन। और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हु विल बी द नेक्स्ट कैप्टन। आपको सिर्फ अब ये एफर्ट्स लगाने होंगे कि शुड से, वांट टू से, विल से। यू ट्राई टू फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस कि आपको याद रह सके। नेक्स्ट आता है कैन, यू कैन, ही कैन। कुछ करने की बात कर सकते हैं, होने की बात कर दे, बी लगा दो, आई कैन बी। मीन्स एबिलिटी है मेरे अंदर ऐसा बनने की, आई कैन बी। जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि हार्दिक पांड्या एक अगर थोड़ा एफर्ट्स लगा ले तो हो सकता है कि अच्छे ऑलराउंडर बन जाए। एबिलिटी तो है, तो ही कैन बी अ गुड ऑलराउंडर। किसी व्यक्ति को देखकर लगता है ना कि टीचिंग के लिए जो गुण चाहिए वो सारे उस व्यक्ति के अंदर हैं, तो आप उनको कई बार कहते भी कि आप टीचर बनना है। क्यों? यू कैन बी अ गुड टीचर। या किसी के अंदर मैनेजरल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं तो हम बोलते हैं यू कैन बी अ गुड मैनेजर। और अगर हमें व्यक्ति रॉन्ग प्रोफेशन में नजर आए, एक शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति जो बिल्कुल टेम्परामेंट लूज कर दें और वो व्यक्ति टीचर बनना चाहता हो, तो शायद बच्चे खतरे में आ जाएंगे। तो उनसे हम कहेंगे यू कैन बी अ गुड टीचर। तो ऐसे में बहुत सारे लोग नजर आते हैं जिनके लिए हमें लगता है कि नहीं, इनके अंदर ये गुण मौजूद नहीं है, ही कांट बी, है, ही कैन बी। आई हैव टू, सही करना है, होना है, बस इतना ध्यान रखें। करने की बात कर रहे हैं, एक्शन लगाएं, कोई वर्ब लगाएं। और होने की बात कर रहे हैं तो बी लगाते हैं, अगर वो नाउन और एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं। कभी कभी लोग अक्सर पूछते हैं टीचर्स से कि आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं, तो टीचर्स बताते हैं सर अगर स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन रखना है तो वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट। फादर और मदर अगर दोनों ही बहुत लीनियंट हो जाए बच्चे के लिए तो शायद बच्चा बहुत बिगड़ भी सकता है। तो एक को तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, वन हैज टू बी स्ट्रिक्ट। अगर ऐसे एक स्टूडेंट सिंसियर तो है नहीं और ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, मैं अगर आईएएस बनना है तो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, सिंसियर। तो अगर आईएएस बनना है तो यू हैव टू बी सिंसियर। So this is part 1 of B which we have discussed today. Do practice this, and if you still have doubts, you can mention your comment box, we'll get back to you. Well, thanks for watching. In description there's a link of Telegram. Do join us so we can send you notifications on time. And don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon. Thanks for watching.